السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں نازیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج چونکہ پھر جلسہ ڈے تھا اور مجھے چونکہ یہاں پہ ایک سیاسی دانشور کے طور پہ بلایا جاتا ہے، اس لیے میں جلسوں پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. کراچی میں عمران خان صاحب کا جلسہ تھا. ہنس کیوں رہے ہو یار؟ بالکل نہیں ہنس رہے. اوکے، ٹیک اٹ سیریس. نہیں، ہم نہیں ہنس رہے. ناظرین سے پوچھ لو، ہم تو نہیں ہنس رہے. ناظرین سیریس لے رہے ہیں. ناظرین، چونکہ آج کراچی میں تحریک انصاف کا جلسہ ہوا ہے اور لاہور میں جماعت اسلامی کا دھرنا ہوا ہے. دونوں ہی بہت بڑے اجتماع تھے، مگر چونکہ کراچی بڑا شہر ہے اس لیے پہلے میں تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب کے جلسے پہ اپنے تبصرہ اور خیالات پیش کرنا چاہتا ہوں. ناظرین، عمران خان صاحب نے انصاف کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میں یہاں برطانیہ کی طرح کا انصاف چاہتا ہوں، اور انہوں نے ایک مثال دی کہ وہاں جانور کے ساتھ بھی انصاف کیا جاتا ہے. وہاں ایک پولیس کے کتے کو مارنے پر ایک پولیس مین کو 6 مہینے کے لیے سزا دی گئی. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ واقعی کتے کے اوپر ظلم جو ہے وہ بھی غلط بات ہے. اس نے اگر کوئی غلط کام کیا تھا تو اسے مارنا نہیں چاہیے تھا، کتے کو اسے معطل کر دینا چاہیے تھا. پھر یار میں نے نہیں کرنا تبصرہ. کرو نا کرو. نہیں، میں نے نہیں اب کرنا. اچھا چلے کر لیں. اچھا، عمران خان کی تقریر میں سب سے زیادہ کیا اچھا لگا تمہیں؟ یہی کہ عمران خان صاحب نے شروع میں تو کہا تھا کہ آج میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کروں گا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد ان کی طبیعت بڑی پھپھو والی ہو گئی. بڑی پھپھو نہیں آگے جیسے کہتی کہ کڑیے میں تمہیں کوئی تانا نہیں دے رہی، مگر جب بھی تمہارے گھر آؤ تم کو چاہ پانی نہیں پوچھتے. سر جو بھی ہے جلسہ بڑا تھا. بڑا نہیں، بہت بڑا جلسہ. میرا خیال ہے کراچی کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے کوئی میرا خیال 2-4 مثالیں ہوں گی، لیکن جو زیادہ خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جلسہ کراچی میں ہوا تھا. بالکل. کراچی جو خوشیوں کو ترسا ہوا شہر ہے، جو مطلب کہا جاتا ہے نا، کراچی جو ہے وہ کرچی ہو چکا ہے، اور اس کی جو روشنیاں ہیں وہ سیاستدانوں نے چھینی ہے، اور سیاستدانوں ہی کا فرض ہے کہ اس کی روشنیاں کراچی کو لوٹائیں، واپس لوٹائیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کا جلسہ دیکھ کر یہ ڈھارس بنتی ہے، یہ حوصلہ ملتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے جب کراچی کو جو اس کی رونقیں ہیں، اس کی جو روشنیاں ہیں وہ واپس مل جائیں گی. اور وہی بات جو کراچی کی سب سے خوبصورت بات ہے وہی اس جلسے میں بھی نظر آئی. اس کی ایک یعنی بہت توانا جھلک جو ہے وہ اس جلسے میں نظر آئی. یعنی چاروں صوبوں کی نمائندگی تھی، ہر طرح کی آواز تھی. بھی موجود تھے، پنجابی بھی موجود تھے، سندھی بھی موجود تھے، مہاجر بھی موجود تھے، ہر بندہ پہنچا. ایگزیکٹلی. کراچی کی جو پچھلے کچھ عرصے سے خوف اور جبر اور ایک فضا بنی ہوئی ہے عجیب و غریب، وہاں پر کسی بھی سیاسی جماعت کے بینر تلے لاکھوں لوگوں کا جمع ہو جانا خوشائن بات ہے. اور ایک جو اس عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے نئی بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ جوید ہاشمی صاحب کا پہلا جلسہ تھا. ہاں، اور اس پہلے جلسے میں ان کی تقریر بھی بڑی زبردست تھی، لاجواب تقریر کی ہے، بڑی پرجوش تھی، بلکہ اتنی پرجوش تھی کہ زمانہ طالب علمی والی تقریر یاد دلا دی. اور جاوید ہاشمی کی تقریر کا سب سے خوبصورت جملہ وہ تھا جب انہوں نے پورے یقین کے ساتھ عمران خان کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ عمران خان اپنے وعدے یاد رکھنا، ورنہ یاد رکھنا کہ میں باغی ہوں. مطلب یہ صرف جاوید ہاشمی کی زبان نہیں ہے، یہ عمران خان سے محبت کرنے والے ہر شخص کی زبان پر یہی بات ہے کہ اپنے وعدے یاد رکھنا. عمران خان صاحب نے ہنسایا ابھی ہے جلسے میں، وہ جب انہوں نے کہا نا کہ میاں صاحب یہ جو 10-10 اوور والا میچ کہہ رہے ہیں وہ ذرا پھر جلدی کر لیں جناب، یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کو ٹیم ہی نہ ملے. اور باقی کہا انہوں نے ٹھیک ہے، جس طرح وکٹیں گر رہی ہیں نا، اوئے ہوئے ہوئے. تحریک انصاف کی طرف تو اس طرح لوگ دوڑ رہے ہیں کہ میرا دوست مجھے بتا رہا تھا کہ یار مجھے رات کو ابا جی مرحوم خواب میں ملے، انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے تحریک انصاف جوائن کر لیا، تم بھی تحریک انصاف میں چلے جاؤ. اب تو لوگوں کا بکرا گواچ ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی جی تحریک انصاف کے جلسے میں دیکھو وہاں نہ پہنچ گیا ہو. اب تو بننے پہ چادر سوکھنے ڈالی ہو، وہ ہوا سے اڑ جائے تو عورتیں کہتی ہیں نہیں پکڑو عمران خان کے جلسے کی طرف جا رہی ہیں. جس قدر تیزی سے لوگ جا رہے ہیں تحریک انصاف میں، مجھے لگ رہا ہے کہ انقلاب وٹ پہ پڑا ہوا. لیکن تم دوسری طرف یہ دیکھو کہ جو عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں،
जिस दिन से इमरान खान का लाहौर में जलसा हुआ है उस दिन से तवातर के साथ एक बात कह रहे हैं कि जो इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है तू उसकी मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। आज भी जो गोल दर गोल सियासतदान इमरान को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद लोग अब इस खदशे में मुब्तला होते जा रहे हैं और इमरान खान के हर कदम को यानी वो ठिठक कर फूंक कर देखते हैं कि कहीं इमरान खान अपने रास्ते से भटक तो नहीं रहा। हम भी अपने शो में बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इमरान खान को अब अपना हर कदम फूंक के रखना होगा। मतलब आज के जलसे में भी इमरान के इर्द गिर्द वो उन लोगों की कमी नहीं थी जो मतलब हर सांचे में ढल जाते हैं, जो हर दौर में जो है वो पार्टियां बदल लेते हैं। इमरान खान को जरूर लोगों को अपने साथ शामिल करना चाहिए, अपने पॉलिटिकल मसल्स को मजबूत करना चाहिए, लेकिन अपने बुनियादी नजरिए पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कराची का आज का जलसा देखकर बहुत से लोगों की ढारसबंदी है और उनको एक नई तवानाई मिली है कि मतलब कराची का मसला भी जिस तरह पाकिस्तान के दीगर मसाइल जो है वो भी मतलब उनको हल किया जा सकता है, कराची का मसला भी इंशाल्लाह हल किया जा सकता है। नेक नियति जरूरी है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के कंधों पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है और उसको इमरान को खुद इस बात का एहसास जरूर करना चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो करेगा। अच्छा जी, ये जो जमात इस्लामी का लाहौर में धरना हुआ है और बहुत बड़ा धरना था, मैं समझता हूं कि लाहौर में ये जमात इस्लामी का बड़ी देर बाद इतना बड़ा इज्तिमा हुआ है। हाँ नहीं, वाकई जमात इस्लामी की तरफ से लाहौर में बहुत मुद्दत के बाद एक यानी अवामी कुव्वत का मुजाहरा है और बहुत कामयाब मुजाहरा है। और मेरा ख्याल है कि अब जमात इस्लामी की क़यादत भी कराची का रुख करेगी। मेरा ख्याल है कि जिस तरह इमरान ने कहा है कि सुनामी का अगला पड़ाव कोयटा में होगा, तो मेरी जाती राय ये है कि जमात इस्लामी गालिबन बहुत जल्द ये ऐलान करेगी कि वो कराची में अपनी एक सियासी और अवामी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जरूर जाना चाहिए जमात इस्लामी को कराची, क्योंकि जमात इस्लामी का जब कराची में होल्ड था बड़ा जबरदस्त, उस वक्त का जो कराची है वो बड़ा पुरअमन था यार, उस वक्त रोशनियों का शहर था। बिल्कुल, कराची का जो यानी कराची पर जो माफिया काबिज है किसी भी तरह का हो, उससे छुटकारा दिलाने के लिए मेरा ख्याल है कि वफाक की अलामत के तौर पर जो सियासी जमातें काम कर रही हैं, उन सबको कराची में अपनी प्रेजेंस जो है वो पूरी जुर्रत और दिलेरी के साथ शो करनी चाहिए। यार मैं तो कहता हूं कि नून लीग वालों को भी कराची जाना चाहिए, वहां जाके इसी तरह जलसा करना चाहिए, लोगों को तसल्ली देनी चाहिए, मायूस अवाम को हौसला मिले। बिल्कुल तुम दुरुस्त कह रहे हो। आज भी यानी कराची में अवामी पजीराई के हवाले से नून लीग कतई तौर पर डेड हॉर्स नहीं है, बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है नून लीग के लिए वहां पे। बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये जो इमरान खान ने 10-10 ओवरों वाले मैच का ललकारा मारा है ना, ये मियां साहब को कराची में खेलना चाहिए जाके। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल रजा आब्दी ने कहा है कि नौजवानों के नाम पर पलने वाली तहरीक इंसाफ का चेयरमैन 61 साल है जावेद हाशमी की शमूलियत से अब वो बाबा पार्टी बन गई है। ये क्या फरमान जारी किया है आब्दी साहब ने, बाबा पार्टी बन गई। इसका मतलब है कि एक नौजवानों के नाम पर जो पार्टी बनी है उसका कायद भी 18 साल का होना चाहिए और सदर और वजीर आजम के लिए जो उम्र की पाबंदी है वो भी फिर खत्म कर देनी चाहिए। यार उनके कहने का मतलब ये है कि यंग पार्टी होनी चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी एक यंग पार्टी है। अच्छा, जब बेनजीर साहब आई थी तो उन्होंने सारे बाबे अंकल कह के निकाल दिए थे। अच्छा, उसके बाद जरदारी साहब आए हैं तो देख लो कोई बुजुर्ग तुम्हें नजर नहीं आया उनकी पार्टी में। सारे फैसल रजा आब्दी साहब की तरह 18 साल के नौजवान नहीं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, 18 साल तो उनके उस पेंट कोट की उम्र हो गई है जो वो पहन के फिर रहे हैं आजकल। उससे पहले कुछ 17-18 साल वो पेंट शर्ट में भी फिरते रहे और उससे पहले 18 साल चड्डी बनियान में भी फिरते रहे। इस हिसाब से जरा लगाओ ना, 18 16 साल उनकी उम्र है। हमें बढ़ा के ना बताया करो। राजा परवेज अशरफ, फरदुल्ला बाबर, जहांगीर बदर, ये सब भी 16 साल के ही हैं। 16 साल का ही रहता है बंदा। अगर 16 किलो खजाब घर में सुटा ले तो खजाब के मुतल्लक तो शायर ने कहा हुआ है, खजाब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के ऐसी है न छोड़ी जाए। अमीर मुकाम ने मुस्लिम लीग डेमोक्रेटिक के नाम से नई जमात बनाने का फैसला कर लिया। बिल्कुल ठीक है, अमीर मुकाम साहब ने ये फैसला एवं नहीं किया। वो जब अपने लिए सब्जी गोश्त लेने जाते हैं ना तो वो जितना खरीदते हैं दुकानदार पूछते हैं भाई की घर में को पार्टी है। उससे उनके ये में आया कि यार मैं खुद एक पार्टी हूं, मुझे पार्टी बनानी चाहिए। देखो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी डेमोक्रेटिक मुस्लिम लीग रखा है।
चूंकि सिर्फ उनके जहन में ही जमहूरियत नहीं, उनके जिस्म की बनावट में भी जमहूरियत है। उनके जिस्म का हर अज़ा मसावी हकूक रखता है। जितना बड़ा उनका पेट है उतना ही बड़ा मुंह है, और जितना बड़ा मुंह है उतने बड़े पैर हैं, और जितने बड़े पैर हैं उतने बड़े हाथ हैं। वाहिद शख्स है जिसके बूट और दस्ताने एक ही नंबर के होते हैं। और तुम ये सुन के हैरान हो गए कि जितने बड़े उनके पैर हैं उतने बड़े गोडे हैं। ऐसा पहलवान सियासतदान तुम्हें कहीं और नजर नहीं आएगा। एक हफ्ते के दौरान सब्जियां 36, फल और मुर्गा 32 रुपए किलो तक महंगा हो गया। हाय 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 हाय, मुर्गा तो इतना महंगा हो गया यार, मुर्गे की गर्दन में सरिया आ गया हुआ अब तो। एक देखो मुर्गे का रेट, ऊपर से सरिये का रेट। पहले तो कोई मुर्गा लेने जाता था तो मुर्गे खुडे में छुपते फिरते थे। अब तो मुर्गा लेने जाए तो वो परों में हाथ डाल के खड़ा होता है। कोई गरीब बंदा रेट पूछ ले, वो आगे से कहता ओए मेरा रेट पूछनी है, तू कितने दे आए? नहीं, अपना रेट बताओ, तुम कितने के हुए? क्या रेट है तुम्हारा, बताओ तो सही। सील भाईजान तेरा एसी बंद करना, कितने के हो तुम? बताओ तेरा, मुझे रेट बता, मेरा मूड बने। क्या रेट है तुम्हारा भाई? तुम्हारी ये जरूरत मुझे आलू में डालोगे, मैं ठूंगा मार के तुम्हारे मुंह पे आलू न डाल दूं। मसाइल में घिरी हुई पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने 2 तैयारे अमले समेत किराए पर हासिल कर लिए। ये कहना ज्यादा दुरुस्त है कि पीआईए ने अपने ठीक ठाक 10 तैयारे ग्राउंड करके 2 तैयारे किराए पर ले लिए। हाय हाय हाय, इस पीआईए का भी मेरे एक दोस्त के ताए वाला हाल है। मेरे एक दोस्त का ताया शराबे पी पी के जुआ खेल खेल के बर्बाद हो गया, आखिर उसकी गड्डी भी बेच गई बेचारे। फिर अब साइकिल किराए पे लेके जुआ खेलने जाता है। जुआ नहीं छोड़ा उस जवान ने, जुआ नहीं छोड़ा। हद हो गई है यार, अपने 10 तैयारे ग्राउंड कर लिए हैं और 2 तैयारे अमले समेत किराए पे ले लिए। अब सवारियां बेचारी डर डर के पूछा करेंगी, भाई जी ये पायलट कितने रुपए घंटे वाला है? और 250 रुपए घंटे वाला तो नहीं बिठा दिया? अल्लाह खैर करे, सफर बड़ा लंबा है। को पायलट ने तसल्लियां देनी है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये $1000 घंटे वाला पायलट है, बहुत अच्छा पायलट है। एयर होस्टेसों ने हड़ताल कर देनी, हमने नहीं $200 घंटे पे काम करना। ये पाकिस्तानी सवारी तो बार बार ठली बजा के पानी मांगता है। ये तो कहता है पायलट को कहो अगले मोड़ तो सजी हाथ हो जाए, मैं इस्लामाबाद नहीं पेशावर जाना है। क्या अजीब मंजर कशी कर रहे हो यार। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, ये पीआईए का अमला ही हमारी सवारियों को भुगत लेता है बेचारा। हाय हाय, ऐसी ऐसी सवारी होती है, उबलिया खाना देन दे, मैं बीमार हाँ। ये पीआईए का जहाज है कि मीओ अस्पताल वाले का जहाज है। Dear, this is English food। अब मगरों भी ला इंग्लिश फूड नो, अगे बड़ी मुश्किल अंग्रेज गलों लाए ने तो इंग्लिश फूड ले आई है। अब एक बर्ची खाने से को साग रोटी पकी थी हो लिया। हो डियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लेन में बर्ची खाना नहीं होता। बर्ची खाना नहीं होता तो रोटी बाथरूम चले आऊंगा। हद हो गई तुहाडे वाली, सियाने आंदे ने पहले बोरची खाना बनाओ तो फिर बाथरूम बनाओ। बोरची खाना ही कोई नहीं तो बाथरूम च बह के ताश खेडनी है। और अगर बेचारा जहाज का अमला साग चावल देते तो उस पर भी नाराज सावश है। और जे जहाज च बह के भी यह रोटी खानी तो फिर तुहाडी भरजाई कोल ही घर बह रहिंदा, भैन मेरी ये जहाज च बैठे आ, कोई नूडल या बर्गर नूं तड़का ला लिया। बर्तानिया में खवातीन के लिए अनोखे जूते मुतारिफ करा दिए गए। एक जूते के साथ 5 मुख्तलिफ साइजेस की एड़ियां दी जाएंगी। अल्लाह फड़ क्या हुआ? फिटे मुंह अंग्रेजों का। तो देखो यार, एक जूती के साथ 5 मुख्तलिफ साइज की एड़ियां मिलेंगी, जैसे पिस्तौल के साथ गोलियों वाली बेल्ट नहीं मिलती। आहिस्ता आहिस्ता ये जूता पाकिस्तान में भी पहुंच जाना है। ये जूते का पिस्तौल से क्या ताल्लुक है? हाय, इतने तुम मासूम है ना। वो जो परसों सर में रोमड़ दिखा रहे थे इतना मोटा, वो तो तुम्हें वसीम अकरम का बाउंसर बजा था, है ना। आहिस्ता आहिस्ता ये जूता पाकिस्तान में भी आ जाना है, को मुश्तरका हिकमत अमली तय करो। यार ये सोचो बीवियों ने अब क्या किया कर ले। अब बीवी ने क्या करना है? जी एक मिनट ठहर जाओ, कसूर तुम्हारा 5 इंच अड्डी वाला है, मुझे मैगजीन बदल लेने दो, ठहर जाओ।
बच्चों को क्या करेंगी? पुत्र इस वक्त तुम्हारे बाप के साइज वाली हड्डी लगी हुई है, वरना मैं तुम्हें बताती। हम तो खामद अकेले बैठ के एक ही गाना गाया करेंगे, कभी बड़ी हड्डी से मारा, कभी छोटी हड्डी से मारा, गिला बीवी से नहीं है, हमेड़ियों ने मारा, कभी बड़ी हड्डी से मारा, कभी छोटी हड्डी से मारा। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ। क्या हो गया तुम्हें? मैंने नहीं करनी डाइटिंग, मुझे बिस्कुट दिए जाए। किसने कहा डाइटिंग करो? यार ये जो वो लड़का लेके आता है चाय के साथ बिस्कुट, ये उसे कह देती है रहने तो, ऐसे मोटा कर रहे हो सबको, ये कल्ली डाइटिंग करे, मुझे नहीं जरूरत डाइटिंग करने की। आप फिट रहेंगे तो अच्छे लगेंगे नजीर साहब। मैं फिट ही हूँ, मैं कब हाय हाय कर रहा हूँ? फिट हाय हाय, आज भी मैं साइकिल उठा के रेलवे फाटक से तैयार लेता हूँ। नहीं माशाल्लाह, फिट नहीं सुपर फिट हो तुम यार, जबरदस्त कुव्वत बर्दाश्त है। क्या मतलब कुव्वत बर्दाश्त है? क्या मतलब? फिट हो यार, कुव्वत नहीं, बर्दाश्त। मुझ में नहीं कुव्वत बर्दाश्त, मुझे बिस्कुट दे। मैं समझता हूँ तुम्हारी साजिशें जो तुम इसके साथ मिलके करते हो मेरे खिलाफ। क्यों यार खाने पीने की चीजें ब्रेक में आनी चाहिए प्लीज। आका खौफ करो, 4 ब्रेक्स हम लेते हैं, 5 डब्बे खाते हो तुम। खाली डब्बे? खाली डब्बे। कल एक इधर डब्बा पड़ा हुआ था, उसमें से तीला मार मार के मैंने इतना सा चूर पूर निकाला था, बिस्कुट तो उसमें कोई नहीं था। कौन से मैं बिस्कुटों के डब्बे खा जाता हूँ? अजीज साहब, ज्यादा बिस्किट्स खाना अच्छी चीज नहीं है, वेट गेन कर लेंगे तो इतने प्यारे नहीं लगेंगे जितने आप लग रहे हैं। बिस्कुटों से भी कुछ नहीं होता, बंदा एक्टिव रहता है। तुमने बिस्कुटों की मशहूरी नहीं देखी? सारे बिस्कुट खा के डांस कर रहे थे। क्यों बहस कर रहे हो उसके साथ? ठीक कह रही है, जरूर तुमने मोटे होना है, 100 बीमारियों की जड़ है मोटापा। चलो ठीक है जी, मैं मानता हूं कि मोटापा वाकई 100 बीमारियों की जड़ है। ओके, दिस इज ऑल राइट, ओके, आई एडमिट इट। मगर ये कौन सा अच्छा तरीका है जी कि डाइटिंग कर करके तुम देख नहीं रहे बच्चे बच्चियां बिल्कुल तीले कर जैसे हो गए हैं, काना बढ़ गए हुए हैं, ये कौन सी अच्छी बात है? मैंने कब उनको डिफेंड किया है? मतलब हम अपने शो में मेरा ख्याल 2-3 बार बहुत तफसील के साथ मोटापे के हवाले से डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ये जो एक दूसरी मुसीबत हमारे यहाँ आ गई है यूरोप से कि नौजवान नस्ल में और ख़ास तौर पर छोटी बच्चियों में ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें जो नंबर 1 है वो एनोरेक्सिया ही है और दूसरे नंबर पर बुलिमिया है। बुलिमिया बच्चियों में नहीं, बच्चों में ज़्यादा पाया जा रहा है और पहले सिर्फ यूरोप तक महदूद थी, अब पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में हर दूसरे तीसरे घर में ये मुसीबत पाई जा रही है। अच्छा सर, एनोरेक्सिया और बुलिमिया में फर्क क्या है? एनोरेक्सिया तो सीधी सीधी है कि ये जो हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये मुसीबत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि आप खास तौर पर यूथ जो है ये अपने ऊपर ये खब्त सवार कर लेती है कि उसने पतला होना है, यानी जरूरत से ज्यादा पतला होने का जो खब्त है इट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया। और ये जो बुलिमिया है ये बच्चियों की निस्बत हमारे यहाँ बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। अच्छा। ये एक तरह का एक नफ्सियाती यानी डिप्रेशन है, ज्यादा खाने के बाद आप एहसास गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं और फिर आपको यानी आप ये समझते हैं कि आपने ज्यादा खा के कोई ऐसा जुर्म आपसे सरजद हो गया है, फिर उसकी रेमेडी के लिए आप अननेचुरल तरीके इस्तेमाल करते हैं पतले होने के लिए। दोनों ईटिंग डिसऑर्डर्स है बीमारी, इसका क्या नाम है? बुलिमिया। ला जी, फिर मुझे बुलिमिया ही हुआ है। क्यों तुम्हें क्यों हो गया खुदा न खास्ता? मैं इतनी रोटी खा के बाद में सोचता हूँ कि मैंने इतनी क्यों नहीं खाई। तुम्हें पता है बुलिमिया में लेट लेडी डायना मुब्तला थी और हमारे ज़हन में आज तक यही है कि ये दोनों जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं ये यूरोप की बीमारी है, हमारे यहाँ दूर दूर तक इसका कोई पता नहीं है। लेकिन अभी पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी का जो ऑफिशियल जर्नल है उसमें एक रिपोर्ट शाये हुई है जिसमें बताया गया कि जो पाकिस्तान में जितने गर्ल्स कॉलेजेस हैं उनकी 42% तालिबात जो है वो एनोरेक्सिक है। ओ मेरे अम्माल का, इसमें वैसे माफ करना मीडिया का भी बड़ा हाथ है ना। हर दूसरे प्रोग्राम में कोई ना कोई बैठा होता है डाइट कराने वाला डॉक्टर, ये ना खाएं वो ना खाएं, घी तो बिल्कुल छोड़ दें, गोश्त को परे कर दें, दाल को नीचे रख दें,
चावल उधर रख दें, हाँ है तो फिर खाना क्या है भाई? बिल्कुल, डाइट का ख्याल रखना चाहिए, मोटापे से हद्दुल वसा बचने की कोशिश करनी चाहिए, जरूर बचना चाहिए, लेकिन ये जो दूसरी इंतहा है ये भी कम खतरनाक नहीं है यार। डाइट के हवाले से सबसे खूबसूरत बात हमारे मजहब में है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। सीधी सीधी बात है, उन्होंने क्या दिया हुआ कि भूख रख के खाएं। बिल्कुल, मतलब तवाजुन का रास्ता हमारे दीन का बताया हुआ रास्ता है। और ये तुम देखो कि गवर्नमेंट कॉलेज के शोबे साइकोलॉजी के में भी एक सर्वे हुआ है जिससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ गर्ल्स कॉलेजेस में 59% ऐसी तालिबात हैं जिनका जो वजन है वो उनकी उम्र और कद के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को फरबा या ओवरवेट समझती हैं। ये देखो जरा, अक्ल किया करो, सारा दिन गाजरे और मूलियों के पत्ते खाती रहती हो। ये तो इतना सलाद खाती है, पत्ते खाती है, मुझे ये डर है कि कहीं इस तरह ना हंसना शुरू कर दे। अब मेरी बात सुनो, इससे भी ज्यादा खतरनाक जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये है इसी स्टडी के कि 21% तालिबात ऐसी हैं जिनका वजन जो है वो उनकी उम्र और कद के लिहाज से कम है, लेकिन वो भी खुद को फरबा समझती हैं, ओवरवेट समझती हैं और स्मार्ट होने के लिए कोशिश रहती हैं। पता नहीं क्या हो गया हमारे बच्चों को। मैं तो समझता हूँ इसमें कसूर सारा है ही मीडिया का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि सर हम देखते हैं ना फैशन शोज भी अब ऑब्वियसली ऑन एयर होते हैं टीवी पे, तो मॉडल्स को देख के हम आइडियलाइज कर लेते हैं और फिर उनके पैटर्न पे चलना शुरू कर देते हैं। यही है ना कि हमारे मतलब एक डेवलपिंग सोसाइटी है, हम यूरोप को अंधाधुंध उसकी नकाली करते हैं, लेकिन वहां पे जब यानी आवाज उठती है मोटापे के खिलाफ तो साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पर यह बात लाजिम करार दी जाती है कि वो अपने पेशेंट्स पर, उनके ज़हनों पर जरूरत से ज्यादा मोटापे का खौफ ना सवार कर दें, वो उनको एनोरेक्सिक ना बना दें। हमारे यहाँ इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, कोई शऊर भी बेदार नहीं किया जाता और हर बच्ची जो है वो इस खप में मुब्तला हो जाती है। सर आपने जो कॉलेजेस की बात बताई है ना, वो वाली प्रॉब्लम तो अब स्कूल्स तक आ चुकी हुई है। मतलब 5th-6th ग्रेड की जो बच्ची हैं वो इस ऑब्सेशन का शिकार हैं कि हम कहीं मोटी तो नहीं लग रही, हम कहीं ओवरवेट तो नहीं हो गई। मैं तो आज भी हकीम बद परहेज का नुस्खा ही बताऊंगा। वो क्या है? हकीम बद परहेज जो सिर्फ परहेज करना सिखाते हैं, वो कहते हैं जी कि परहेज इस बात की है कि आपने ये जो घर के काम करने छोड़ दिए ना खवातीन ने, इस वजह ये मोटापा फैल जाता है। आप आज भी अपने फर्शों पे खुद टाकियां मारनी शुरू करें, खुद झाड़ू देना शुरू करें, आप अपने बर्तन खुद धोएं, आप अपने कपड़े खुद धोएं, सारे घर के काम सिर्फ करना शुरू कर दे तो बेहतरीन एक्सरसाइज है। कभी खवातीन बच्चियां हमारी मोटी हो ही नहीं सकती। नहीं, इसीलिए तो हकीम बात परहेज की बात, ये खुद अपने ऊपर लागू करता है, सबसे ज्यादा मानता है। यही जुल्म है कि हकीम बात परहेज औरतों के लिए कहता रहा, ये को खुद ये परहेज करनी पड़ती। यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन शुरू करते हैं हस्बे डाक। हस्बे डाक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम डायरेक्ट ही शुरू हो गई हो। अगर तुमने शुरू करना है इस तरह नाज़रीन से मुखातब होना है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हस्बे आल से आ जाओ लोग। सर आप इजाजत दे दें। क्यों मस्का लगा रहे हो मुझे? नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। बात तो मेरी को सुनते नहीं हो यार, ये ना करो यार, तुम्हारी बात में क्यों नहीं सुनता? एक मिनट बोलना शुरू कर देते हो। तुम जब भी कुछ खाने पीने के लिए मंगाते हो कि खाओ, मैं फौरन खाता हूँ, क्यों नहीं सुनता? हमारी जिंदगी का वाहिद मसला खाना पीना। 4 दिनों दी दुनिया है, कुछ खा ले पी ले, मौजूदा कुछ खा ले पी। मेल शुरू करें, मेल उनसे पूछो। सर आप इजाजत दे दें, करे। अच्छा, सिद्रा इस्लामाबाद से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम, मेरा अजीजी साहब से एक क्वेश्चन है कि जो लोग हवा का रुख देखकर पार्टी छोड़ते हैं उन्हें तो लोटा कहा जाता है, मगर जो अच्छी नीयत के साथ और ईमानदारी की खातिर पार्टी छोड़े उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें मुस्लिम शावर कहते हैं। नहीं, मुस्लिम शावर एक मोअज़्ज़ज़ इंसान होता है। वैसे सिद्रा बेटा, ये तो हमें हंसते ही रहते हैं मुझ पे, मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटे। असल में वो जो होता है ना, जो ईमानदारी से पार्टी छोड़ के आता है, वो उसे भी लोटा ही कहते हैं। मगर ये दूसरा लोटा होता है, वो जो जिसको परवीन शाकर ने कहा है ना कि वो जहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। जहीं भी गया, और अपना जहां भी गया यार, कहीं और जहां को मिला दिया यार मैंने। अच्छा, मेरे भी एक सवाल का जवाब दो ना, इस बात का फैसला कौन करेगा फिर कि किसी ने अच्छी नीयत के साथ पार्टी को छोड़ा है या करप्शन की बुनियाद पे छोड़ा है, लालच की बुनियाद पे छोड़ा है? कौन डिसीजन करेगा इस बात का? सिद्रा बेटे, मैं माफी चाहता हूँ, मैं इस वक्त ये खोचलों में किराऊं हूँ।
अच्छा जी, लाहौर से मोहम्मद असलम लिखते हैं, मैं दिन में जॉब करता हूँ और रात को आजकल सूप और यखनी लगाता हूँ। आजकल बहुत ठंड है, इसलिए आप सबको दावत दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर सूप पीने आए। अजीजी साहब, मैं इनकी तरह मेजबानी नहीं करूंगा, आपका जितना दिल करे सूप पी लीजिएगा। आपके लिए क्या नाम है इनका? इनका नाम मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब को भी पता नहीं है। चले, जिंदगी तजर्बात से इंसान सीखता है, एक दफा दावत दे ले। दे दिए उन्होंने दावत, ठीक है। पहले उनसे तो पूछ लो वो सूप कौन सा बेचते हैं। क्यों भाई जी, आपके कहीं वो वाली दुकान तो नहीं जहाँ एक बंदा गया था तो उधर पतीले के ऊपर जो कुकड़ लटका हुआ था, उस बंदे ने कुकड़ से पूछा, सुनाओ कुकड़ साहब क्या हाल है? कहता क्या हाल होना है भाई जी, पिछली 3 सर्दियों से यही लटका हुआ, नीचे पता नहीं किस चीज की जखनी बेचते जा रहे हैं, मुझे तो इधर ही फांसी लगी हुई कि प्यार की कदर करो। नहीं, यकीनन जो उन्होंने दावत दी है वो एक अच्छा सूप बेचते होंगे। भाई साहब असलम साहब, मैं इंशाल्लाह कल अपने मोहल्ले में मीटिंग करूंगा जनाब। हमारे मोहल्ले में मेरा ख्याल है कोई 250 बंदा रहता है, अगर वो सारे मान गए तो मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ जनाब सबको लेके आऊंगा और सूप पीना चाहूंगा मैं ये। और उन्होंने हम सबको दावत दी है, तुम मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके जा रहे हो? हम तीनों को जी। अच्छा, मैंने समझा शायद मुझे गरीब समझ के कह रहा कि ले ही सारा मल्ला नाल। बड़ी मेहरबानी जनाब, जरूर किसी दिन हाजिर होंगे। अच्छा जी, सऊदी अरब रियाद से इमरान हुसैन लिखते हैं, प्यारे मीठे सोने दानिश्वर चुलबुले अजीजी। माशद के जो कौन लिखते हैं कि? इमरान हुसैन। अच्छा, आजकल इमरान सारों को ही अच्छे लग रहे हैं। आपका प्रोग्राम बेहद शौक से देखता हूँ। अजीजी के दर्दनाक घरेलू वाकयात सुन सुनकर मेरा तो शादी का इरादा ही तब्दील हो गया था कि लड़कियां इतनी जालिम होती हैं। फिर मुझे मेरे एक चचा ने समझाया कि वो अजीजी के दौर की लड़कियां ऐसी होती थीं, आजकल ऐसी नहीं होती। दौर की लड़कियां, मैंने फराउन की बहन से शादी की। किस दौर में मुझे ले गए यार, खुदा के वास्ते। कितना माइंड किया तुमने? देखो तो सही, अजीजी के दौर की लड़कियां जालिम होती थी, या मैं हलाकू खान के घर जंज ले गया था, या मेरे सौरे का नाम ख्वाजा हिटलर है। इमरान भाई, ये जो आपके चचा जान आपको मशवरा दे रहे हैं ना, ये गलत मशवरा दे रहे हैं। जो बीवी होती है ना, ये कोई किसी नस्ल का नाम नहीं होता, ये बीवी एक कैफियत का नाम होता है। वो जिस दौर की भी हो वैसे ही हो जाती है। साहिवाल से एम रशीद नसीर लिखते हैं, प्यारे हस्बे हाल वालों, आप सबको अल्लाह पाक खुश रखे। अजीजी भाई, इतने तालीम याफ्ता होने के बावजूद आप जब चांद वाली माई का जिक्र करते हैं, ये दोबारा जरा फिक्रा कहना। अजीजी भाई इतने, अजीजी भाई तालीम याफ्ता, अजीजी भाई तालीम याफ्ता, अजीजी भाई तालीम याफ्ता। रहने दो भाई जी, जहां तक तुम्हारी तंज आ रही है। तंज आ रही क्या बुआ रही? अच्छा, लिखते हैं, अजीजी भाई इतने तालीम याफ्ता होने के बावजूद आप जब चांद वाली माई का जिक्र करते हैं तो चांद से नीचे देखते हैं। अगर चांद पर रहने वाली मखलूक जमीन पर किसी से बात करना चाहती है तो वो नीचे नहीं ऊपर ही देखेंगे। हाँ, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। मुझे टेक्निकल का तो नहीं पता, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं तालीम याफ्ता हूँ को माई का रिश्तेदार नहीं हूँ। मैंने तो ये अंदाजा लगाया कि माई और उनकी जितनी उम्र हो गई हुई है, वो बेचारी अब बूते कहाँ देखती होगी, नीचे देख के बात करती होगी। मानना ना तुम अपनी गलती, कचबैसी करते जाना। यार तुम भी लोगों के साथ मिल जाते हो यार। ठीक पॉइंट है, जहाँ मैं गलत निकला तो वहाँ पर्दा डाला करो। अच्छा जी, सियालकोट से सुलेमान लिखते हैं, मेरा जुनैद साहब से एक सवाल है कि आजकल हर जगह इनकलाब की बात हो रही है, किसी भी इनकलाबी शख्सियत की क्या खसूसियात होती हैं और क्या आज भी कोई हकीकतन इनकलाबी शख्सियत है? प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। बताओ अब मेरी खसूसियात। मेरा ख्याल है एक जुमले में इस सवाल का जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जुमले में भी कह सकते हो, ये को नोट किया कर। सियासत के हवाले से इनकलाब की बात कर रहे हैं, तो इनकलाबी तो वो है मेरे राय में कि जो इस मौजूदा सियासी कल्चर को तब्दील करने की बात करता हो, और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि जिस इनकलाब की वो शख्स बात कर रहा है उसकी जात में भी वो इनकलाब नजर आ रहा हो, उसकी बूदोबाश में, उसकी बॉडी लैंग्वेज से उस इनकलाब की खुशबू आ रही हो। आ रही है। जी, इस्लामाबाद से अकरम साहब लिखते हैं, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर रोजाना मरे हुए जानवर नजर आते हैं, लेकिन उन्हें उठाने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। आप ही कुछ कीजिए। कई दबड़ा लेके वहां पहुंच जाऊं जनाब।
حضور اکرم صاحب بات یہ ہے کہ جنہوں نے آرڈر کرنا ہوتا ہے نا اس طرح کے گند کو اٹھانے کا جو صحتوں کے لیے زہر ہے وہ تو گاڑیوں میں بیٹھ کے شیشے اوپر کر کے گزر جاتے ہیں, ان کو تو اس بدبو کا یا جراثیم کا احساس ہی نہیں ہوتا. یہ تو موٹر سائیکلوں پہ گزرنے والوں کے لیے وہ ایک عذاب ہوتا ہے. میں تو بس دعا ہی کر سکتا ہوں کہ کسی دن وزیر اعظم یا صدر صاحب یا سی ڈی اے کا چیئرمین موٹر سائیکل پہ وہاں سے گزرے, اگلے دن سے آپ کو مرے ہوئے جانور نہیں نظر آئیں. اچھا عزیزہ, میں آپ کو تصویر دکھانے لگی ہوں, ہیلمٹ میں 2 بندے بیٹھے, وہ کیا کریں اس پہ آپ کا تبصرہ چاہیے. دکھائیں جناب. یہ لیں, یہ زمان صدیقی نے ملتان سے بھیجی ہے. واہ 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 واہ, ادھر تو دیکھو یارا, وہ کام ہیلمٹ پہن کے کر رہے ہیں جو میں بغیر ہیلمٹ کے کرتا ہوں. دونوں پیاز کاٹ رہے ہیں اور آنسوؤں سے بچنے کے لیے ہیلمٹ زیب تن کیے ہوئے. سوری, تن سے تو انہوں نے قمیضیں اتاری ہوئی ہیں, زیب سر کیے ہوئے. ناظرین, چند کمرشلز کے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین, آج تمام دن آپ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے استعفے کی خبریں سنتے رہے اور بعد ازاں آپ نے اس کا ڈراپ سین بھی دیکھا. اس تمام معاملے کو خود ڈاکٹر صاحبہ سے بہتر انداز میں کون بیان کر سکتا ہے, اس لیے اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے خاص طور پر دعوت دی ہے آج ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو. کہاں ہے وہ؟ آ گئی. جب آپ چل سکتی ہیں تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہائے, کیا ہوا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بس ادھر ٹیمپو شیمپو. اچھا ڈاکٹر صاحب, مختصر سا بتا دیں آج سارا دن کیا ہوتا رہا. آپ کا استعفے کا مسترد ہونا, آپ کی تقریر, پہلے آپ کا رونا, پھر آپ کی مسکراہٹ, یہ سب کچھ کیا تھا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں اس بات پہ اعتراض کروں گی جنید سلیم صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈراپ سین ہوا ہے. دیکھیں, ڈراپ سین ڈرامے کا ہوتا ہے, تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں؟ نہیں, خدا نخواستہ, بالکل ایسا میرا مطلب نہیں ہے. مطلب پہلے آپ کی ناراضگی کابینہ کے اجلاس میں, اس وقت آپ روتے ہوئے آپ نے استعفیٰ دے دیا, پھر آپ مسکراتے ہوئے آپ نے پریس سے خطاب کیا. دیکھیں, جمہوری حکومت ہے ہماری, جمہوری دور ہے, جمہوریت اسی کا نام ہے, یہ جمہوری دور ہے اور ہماری جمہوری پارٹی ہے. میرے چند تحفظات تھے جو نہیں دور ہو رہے تھے, جس کی وجہ سے میرا رونا نکل گیا تھا. اچھا, تو میں نے پھر اپنا استعفیٰ پیش کیا. جب تو وزیر اعظم صاحب نے میرے تحفظات دور کرنے کا وعدہ کیا, اس پہ پھر میری ہنسی نکل گئی. اسی کا نام جمہوریت ہے نا. آپ کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی تو آپ رو دے, جب آپ کی بات مان لی جائے تو ہنس کے دکھا دے. دیکھیں, اپنے موقف میں سختی نہیں نہ ہونی چاہیے, فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا, تو کیا آپ کے تحفظات کیا تھے؟ دیکھیں, میرے پاس وزارت اطلاعات و نشریات اور یہ سارے ڈائریکٹ ہوئے ہیں. حالانکہ اطلاعات و نشریات تو میرا کام ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر اوباما نے پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے بات کرنی ہے تو پہلے وہ مجھ سے بات کرے. گو میرا دل نہیں کرتا وہ کالے منہ والے نہ گل کرن تے, مگر چونکہ میرے پاس یہ منصب ہے وزارت اطلاعات و نشریات کا, اس لیے وہ مجھے فون کرے اور میں پھر آگے پریزیڈنٹ صاحب سے بات کرواؤں یا وزیر اعظم صاحب سے بات کرواؤں. خود اس شوخے کو نہیں نہ چاہیے کہ ہر ایک کو خود ہی فون کرتا رہے. اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی جو بات عوام کو کہنی ہے وہ پہلے مجھے بتانی چاہیے, میں آگے نشر کروں نا, چونکہ میرے پاس نشریات کا محکمہ ہے. مگر وزیر اعظم صاحب بھی جب نیا پینٹ کوٹ پہنتے ہیں شوق میں کیمرے کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ آپ کون سا اختیار مانگ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو کوئی بھی نہیں دے گا. تو پھر ہور میں دفتر چ بہ کے آلو والے پراؤنٹھے بناوا کر. دیکھیں, جو وزارت اطلاعات و نشریات ہوتی ہے وہ حکومت اور عوام کے درمیان پل کا کام کرتی ہے. صرف اتنی شکایت ہے آپ کی؟ شکایتیں تو کافی ساری ہیں. دیکھیں نا, میری وزارت میں 4 وزیر گھسے ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے بارے میں یہ تاثر بھی بہت عام ہے کہ رحمان ملک صاحب, شہری رحمان صاحبہ اور قمر الزمان قاہرہ اور بابر اعوان کے ساتھ آپ کی خام خواہ کی ایک دشمنی ہے. دیکھیں جی, جو قمر الزمان قاہرہ صاحب ہے نا, میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں, مگر ان کو ذرا یہ غصہ ہے کہ میں نے ان کی وزارت چھینی ہے اور میں ان سے بہتر وزارت چلا رہی ہوں. اس بات پہ وہ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں.
اور شیری رحمان صاحبہ جو ہے وہ تو ویسے اس لیے مجھ سے جیلس ہے کہ میری بیوٹی ذرا ان سے زیادہ ہے. اچھا تو عورتوں میں یہ جیلسی ہوتی ہے. اچھا. اور یہ جو رحمان ملک ہے اس کو یہ خوف ہے مجھ سے کہ کہیں مجھے اگر وزارت داخلہ مل گئی تو وہ تو صرف نوٹس لیتا ہے, تو میں نے تو دہشت گرد کسون مار مار کے مار دینی. اچھا. تو اس طرح میری جو ریپوٹیشن ہے وہ اس سے اچھی ہو جائے گی. وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کام کچھ نہیں تھا کر رہا اور میں کر رہی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے اپنی بیوٹی کا ذکر کیا, آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ سرکاری خزانے میں سے 1 لاکھ روپیہ ماہانہ اپنے میک اپ پہ خرچ کر دیتی ہیں. شاباش, 1 لاکھ روپیہ میں منہ تے پلسٹر کراؤنی ہے یا میک اپ مین گو بن کے میرے منہ تے میک اپ کر دے. کو بات وہ کریں جو کرنے والی ہے. جب منہ میرا پرائیویٹ ہے تو میں میک اپ کیوں سرکاری کروں گی؟ اور ویسے بھی جنید صاحب میک اپ میری وزارتی مجبوری ہے. ایک دفعہ میں کیبنٹ کے اجلاس میں بغیر میک اپ کے چلی گئی تھی تو پرائم منسٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ رحمان ملک صاحب آپ اپنی رپورٹ پیش کریں. میں کہ گلانی صاحب ہوتے آیا ہی نہیں جے خدا دا نا جے کی کر دیو. اچھا ڈاکٹر صاحب مائنڈ مت کیجئے گا, آپ کے دشمن آپ پر کرپشن چارجز بھی لگاتے ہیں. اوہ جنید صاحب کہو جے سوال کرن لگ پئے, وہ بھی ایک زخمی عورت نا. شکر کرو اللہ تو میں ویل چیئر تے آئی ہوں. اگر میں وساکھیاں نال لے کے آئی ہوندی تے پھر اگلا 1 مہینہ تسی ویل چیئر تے ہونا سی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے ویل چیئر سے یاد آیا, آپ ابھی تک کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکیں کہ آپ کو کوئی ٹریفک حادثہ پیش آیا تھا. تسی ہاتھ سے میرے تے پیچھے پہ گئے ہو. تسی این کرو یہ ٹریفک چ وارڈن لگے ہوں میں کہ نال کیمرہ مین رکھیں گے جدوں میری گڈی الٹے فٹافٹ فوٹو کھچ لیں, یا کیمرے والا مینوں کہے ریڈی تے پھر میں الٹاواں گڈی. الٹ گئی, اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ حکومت کی اتنی تدبیریں الٹ گئی ہیں تو میری گڈی نہیں الٹ سکتی. اچھا چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں. یہ فرمائے کہ چلیں وزراء کی بات تو سمجھ آ گئی, آپ بیوروکریٹس کے بھی خلاف ہیں. آپ نرگس سیٹھی کی, اکرم شہیدی جو پریس اسسٹنٹ ہیں وزیر اعظم کے, ان کی بھی چھٹی کرانا چاہتی ہیں. ان سے آپ کا کیا لینا دینا؟ دیکھیں جی مجھے ذاتی کسی سے کوئی رنجش نہیں ہے. ہمیں عمران خان کی سیاست سے کچھ سیکھنا چاہیے. وہ جب نوجوانوں کو لا رہا ہے آگے تو ہمیں بھی نوجوانوں کو آگے لانا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا شہیدی صاحب والی جو سیٹ ہے اتنی اہم ہے, اور وہ پہلے ہی نوکری سے شہید ہو چکے ہیں اور ہم نے ان کو لا کے اس سیٹ پہ بٹھا دی. اور یہ جو سیٹ کلچر ہے اس کو بھی ہمیں ختم کرنا چاہیے. اس لیے نرگس سیٹھی بھی سوٹ نہیں کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب بات کچھ اور لگتی ہے. جنید صاحب یہی بات ہے. اور میرا نرگس سیٹھی سے کیا متعاون ہے, وہ تو میک اپ بھی نہیں کرتی بیچاری. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے استعفیٰ دیا نہیں تھا بلکہ آپ سے استعفیٰ لیا گیا تھا, اور وہ بھی اس بنیاد پہ کہ آپ ذاتی پبلسٹی پہ بہت زیادہ زور دے رہی تھی اور حکومتی پالیسی کا کوئی دفاع نہیں کر رہی. ہاں ذاتی پبلسٹی آپ نے مجھے پیپکو کے اشتہار میں دیکھ لی ہے کہ ایسی چھبی پہ چلائیں. مجھے کوئی چینل والا بلاتا ہے تو میں جاتی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے پبلسٹی. لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ حکومتی پالیسیوں کا دفاع کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں. دیکھیں جی حکومتی پالیسیوں کا دفاع کرنا تو وزارت دفاع کا کام ہے. اور مجھے تو ویسے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ ذرا ہاتھ تھولا رکھنا. اگر میں دفاع کرنے پہ اتر آئی نا تو پھر انہوں نے کہنا کہ ہو دفاع. ڈاکٹر صاحب ویسے آج کیبنٹ میٹنگ میں استعفیٰ دیتے ہوئے آپ نے پوری قوم کو دکھی کر دیا. بس میری بھی طبیعت وہ جو شاعر ہے نا انور مسعود صاحب ان والی ہے. ہم دونوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا, جب مرضی ہنسا دے اور جب مرضی رلا دے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.